Hello, good evening students. Today we will do subject SP Secretarial Practice chapter number 1 Introduction to Corporate Finance. Okay, already in last lecture what we had done first is what meaning, definitions and importance of what corporate finance. Today we will do the capital requirement. Okay, now see, आई विल टेक वन बॉय हुज नेम इज़ वॉट राज. ठीक है, वो बंदे का नाम क्या है? राज है. उसने अपने माइंड में कुछ तो बिजनेस के आइडियाज़ लाए. ठीक है, आइडियाज़ लाने के बाद में ही स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट बिजनेस कि वो बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. उसने पूरा इन्वेस्टिगेट किया बिजनेस को एंड ही कम टू द फाइनल डिसीजन. ओके, वो फाइनल डिसीजन पे आता है कि उसको एक इंडस्ट्रियल का बिजनेस स्टार्ट करना. उसने स्टार्ट किया. सेकेंड थिंग इज़ व्हाट, वेन एवर यू गो टू स्टार्ट एनी बिजनेस व्हाट यू रिक्वायर्ड? कैपिटल. यू रिक्वायर्ड व्हाट? फाइनेंस. आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है हर बिजनेस में. इधर इट मे बी द स्मॉल स्केल बिजनेस और इधर इट मे बी द लार्ज स्केल बिजनेस. इन एवरी बिजनेस व्हाट यू रिक्वायर्ड? फाइनेंस. विदाउट फाइनेंस बिजनेस इज नॉट गोइंग टू रन स्मूथली. आपका बिजनेस अच्छी तरीके से नहीं चल सकता लंबे समय के लिए. तो आपको क्या चाहिए? कैपिटल. Whenever you require the capital, for that what you have to do? Financial planning. आपको क्या करना पड़ेगा? Financial planning करना पड़ेगा. Once you're done with the financial planning, you have to take the two important things while doing the financial planning. First is what? Present and second is what? Future. आपका बिजनेस अभी कैसे चलेगा और बाद में आपके बिजनेस में कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होना चाहिए. Next important thing is what? Sources of capital is required, where they indicated the two sources of capital. First is what? Fixed capital. Second one is what? Working capital. Okay, fixed capital is what? The capital which is used for a longer period of time. जो longer period of time के लिए हम use करते हैं उसको बोलते हैं fixed capital. Working capital जो day to day business के लिए required होता है, that is known as in what? Working capital. Now you can see on the screen they have given you one statement. Financial plan refers to assessment of financial requirement. उन्होंने क्या बोला कि फाइनेंशियल प्लानिंग किससे रेफ़र करता है? असेसमेंट करो आप कि आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है. इट्स नॉट देयर ना कि आपको पूरा ही पैसा चाहिए. कुछ तो पैसा आपके पास ऑलरेडी रिजर्व में होगा. अभी आपको कितने पैसों की ज़रूरत है उसका असेसमेंट यू हैव टू डू इट. नेक्स्ट इज़ व्हाट? अरेंजिंग द सोर्सेज ऑफ कैपिटल. आपको उसके बाद में यू हैव टू अरेंज द सोर्सेज ऑफ कैपिटल. फर्स्ट वी विल गो टू व्हाट? फिक्स्ड कैपिटल. नाउ यू कैन सी ओवर देयर फिक्स्ड कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर बाइंग अ फिक्स असेट. फिक्स कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो हम क्यों यूज़ करते हैं? कोई भी फिक्स असेट खरीदने के लिए, और वो फिक्स असेट वी यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस. हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं? लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. एंड दैट पर्टिकुलर फिक्स असेट आर नॉट फॉर द रीसेल, और वो रीसेल नहीं किया जाता है. Okay, hope so you understand. Fixed capital is always what? Permanent capital. It is for a longer period of time. You can see all the examples of the fixed capital. First is what? Land and building, furnitures, plant and machinery, etc. are the fixed capital जो establish होता है आपके new company के लिए. Okay, and it is also used for the expansion and development and replacement of the equipment also. Hope so you understood. Come to the next point. What they have given you? Initial planning of fixed capital requirement is made by the company promoter. Yeah, of course. Who is a promoter? Promoter is a owner who have started the business. जो बंदे ने business start किया वही तो fixed capital ये सब का क्या करेगा? Proper planning करेगा और उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन से उसके requirements है. Okay. Next we will go what they have given you. For this they first prepare a list of fixed assets needed by the company and the cost of these assets is estimated. Whenever you go, suppose you go in the market and purchase any of the fixed asset. ठीक है, आप जाते हो मार्केट में फिक्स असेट परचेज करने, तो यू फर्स्ट मेक अ लिस्ट कि आपको क्या क्या चाहिए. फिर आप जाते हो वो परचेस करने के लिए जो आपके घर में लंबे समय के लिए होता है.
ठीक है। तो आप उसका क्या करते हो, कॉस्ट निकालते हो कि ये शॉप में कितना कॉस्ट है, वो शॉप में कितना कॉस्ट है. सेम थिंग हैपन्स इन द बिजनेस ऑल्सो. वेन एवर यू गो एंड परचेज एनी काइंड ऑफ द फिक्स एसेट, फर्स्ट यू हैव टू मेक द लिस्ट एंड आफ्टर यू हैव टू डू द कॉस्ट. ओके. They collect the information regarding the price of land, cost of construction of building, cost of plant and machinery. I will give you one example. आप अपने घर का जब रेनोवेशन करते हो तो रेनोवेशन करने के टाइम पे यू मेक द कोटेशन. ठीक है, आप अपना एक कोटेशन बनाते हो और जो आपके इधर कंस्ट्रक्ट करने वाला आता है उसको पहले आप अपना घर दिखाते हो एंड ही गिव यू द सम कोटेशन. अगर आप 3 to 4 लोगों के पास जाते हो तो सबका अलग अलग कोटेशन होता है. जो आपके कोटेशन से मैच होता है उसको आप क्या करने के लिए देते हो, काम करने के लिए देते हो. तो सेम थिंग हैपन्स इन बिजनेस ऑल्सो. आप देखते हो कि मेरे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी आई एम हैविंग, कितना पैसा मुझे लैंड में डालना चाहिए, हाउ मच मनी इट विल टेक फॉर द कंस्ट्रक्शन, फॉर बिल्डिंग एंड ऑल. तो आप पूरा उसका फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो. नेक्स्ट इज व्हाट, एन एंटरप्रेन्योर ऑब्टेन अ फंड फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट फ्रॉम द कैपिटल मार्केट. Funding can comes from the issue of shares. Already I have told you the sources of funds. Okay, sources of capital where you get the money. ठीक है, issue of shares, debentures, bond. These are all what, long term sources of finance. Next is what, factor affecting the fixed capital requirement. Okay, first what is what, nature of business. Now see what happens. If I say to you that there are the 2 companies, एक है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक है ट्रेडिंग कंपनी. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या लगेगा, फिक्स एसेट ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू व्हाट, ट्रेडिंग कंपनी. वाई ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी ओनली रिक्वायर्ड व्हाट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट. उनको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है पर उतनी अमाउंट में नहीं होती जितना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को होती है. क्यों, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्ड व्हाट, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, प्लांट्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो उनको चाहिए. बट व्हाट अबाउट ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी इज ओनली रिलेटेड टू द ऑनलाइन ट्रेड्स एंड ऑल. ठीक है, तो उनको उतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती. नेक्स्ट इज व्हाट, साइज ऑफ बिजनेस. Now see what happens, size of business. When a business firm is set up to carry on a large scale operation, its fixed capital requirement is likely to be high. Now what happens? Suppose, see, one is what, MNC company, and second one is what, your normal company, XYZ company, and MNC company is there. Okay. Now the thing is that ki MNC company required the huge investment, huge capital, each and everything required in a larger amount as compared to the XYZ company. Why? Because XYZ company is not that much huge in the business. Okay, साइज में वो इतना बड़ा नहीं है तो उसको उतने पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. पर यही अगर मैं MNC की बात करूँ तो MNC इज़ लार्जर इन द साइज एज कम्पेयर टू वॉट, XYZ कंपनी. तो ही रिक्वायर्ड द ह्यूज कैपिटल. ओके. नेक्स्ट इज वॉट, स्कोप ऑफ बिजनेस. There are business firms which are formed to carry on the production or the distribution on a large scale. Such business would require the more amount of fixed capital. Now see what happens. If you go for the manufacturing company, in the manufacturing company there is what, production of goods and services. Okay, production of goods, distribution of goods and all. For that what they require the huge amount of fixed capital. उनको fixed capital की ज़्यादा requirement होती है. Next is what, extent of lease or rent. Lease is also known as what, rent. If entrepreneur decide to acquire the assets on lease or on rental basis, least amount of fund for the fixed asset will be needed for the business. अभी उन्होंने क्या बोला, देखो, कंपलसरी नहीं है कि हर बिजनेस जो फिक्स कैपिटल है, जो फिक्स्ड है, फिक्स मशीनरी इक्विपमेंट्स है, वो परचेस करके ही ले, वो रेंट बेसिस पे भी खरीद सकते हैं. ठीक है, एवरी कंपनी इज हैविंग देयर डिफरेंट डिसीजन, डिफरेंट चॉइस, तो दे कैन परचेज ऑन रेंटल बेसिस ऑल्सो. ओके, वेन एवर दे परचेज ऑन द रेंटल बेसिस, लेस अमाउंट ऑफ फंड फॉर द फिक्स एसेट विल बी नीडेड. तो अगर आप कोई भी चीज़ रेंट पे लेते हो तो रेंट पे इट टेक्स अराउंड 5,000, 6,000, 7,000 और ऑलमोस्ट 10,000. ठीक है, पर यही अगर मैं कोई भी चीज़ परचेस करके खरीदूँ तो इट्स में टेक 25,000, 30,000. तो रेंट का जो अमाउंट है दैट इज़ व्हाट, लेस एज कंपेयर टू व्हाट, परचेसिंग अमाउंट. नेक्स्ट इज व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट. इफ अ बिजनेस वांट टू अ सब कॉन्ट्रैक्ट
some process of production to other. Limited assets are required to carry out the production. It would minimize the fixed capital requirement of business. Now there is what subcontract. They can take on the contract basis also. अगर मैं कोई भी चीज़ और या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन भी करती हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, मिनिमाइज हो जाती है. क्यों? क्योंकि आई हैव टेकन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. नेक्स्ट इज व्हाट, एक्विजिशन ऑफ old asset. If old equipments and plants are available at a low price, then it would reduce the needs of the investment. If I purchase a second hand product, तो that will take lesser amount. ठीक है, अगर मैं second hand कोई भी product purchase करती हूँ तो वो कम amount लेगा, पर यही अगर मैं new purchase करती हूँ तो it will take larger amount. तो if your company want to purchase the second hand product, तो उसको fixed capital कम लगेगा. Acquisition of assets on the concessional rate. With the view to the faster industrial growth at the regional level, the government may provide land and building. Government आपको land and building provide करता है, material provide करता है. कौन से rate पे? Concessional rate पे. Okay. Plant and equipment may also be made available on the installment basis, and such facility will reduce the requirement of fixed capital. Earlier, your mom dad purchase any commodity, okay, वो कोई भी fixed asset purchase करते थे, तो that time there is no any kind of the EMI system were there. Okay, उस time पे EMI system नहीं था, but now there is EMI system available. So whenever you go for the EMI system or the installment basis, so what happens, your fixed capital amount is what reduces. क्यों? क्योंकि जब आप पूरा परचेस करते हो एक साथ में, तो यू हैव टू गिव द मोर अमाउंट. पर यही अगर मैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे परचेस करूँ तो एवरी मंथ आई हैव टू पे इट. ठीक है, लिटिल वो कुछ सम अराउंड इंस्टॉलमेंट रहता है 2000, 3000, 4000 का, तो वो हर महीने आपका डिडक्ट होके जाता है. तो यू डोंट रिक्वायर द ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल. नेक्स्ट इज व्हाट, इंटरनेशनल कंडीशन. दिस फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट, पर्टिकुलर in a large organization carrying a business on the international level. Company accepting a war may decide to invest a large fund to expand the fixed asset before there is a shortage of material. अभी उन्होंने क्या बोला, इंटरनेशनल कंडीशन. इंटरनेशनल कंडीशन में ये होता है कि कंपनी किसके लिए जाती है, लार्जर इन्वेस्टमेंट के लिए ला जाती है, लार्जर फिक्स कैपिटल के लिए. क्यों? क्योंकि उनको whenever you do business on the international level, that time there should not be any kind of the shortage related to the material and equipment. Come to the next point. Next is what, trends in economy. If the future of the company is anticipated to be bright, it gives green signal to the business entrepreneur to carry out all sort of expansion. अभी आपका बिजनेस एक नॉर्मल लेवल पे चल रहा है. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम योर बिजनेस गोज ऑन द पीक पॉइंट. ठीक है, पीक मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न करने लगते हो, एंड यू गेट द सिग्नल, आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि आपका बिजनेस आगे जाके बहुत अच्छा होने वाला है. तो व्हाट यू डू, यू इन्वेस्ट अ लार्जर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर व्हाट, गेटिंग अ प्रॉफिट इन फ्यूचर और गेटिंग अ बेनिफिट्स इन फ्यूचर. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. 10th is what, population trend. When the population is increasing at the high rate, certain manufacturers find this an opportunity to expand the business. Yeah, exactly. When population increases, production also increases, sales also increases, demand is also there, and supply is also there. So what happens, you get the huge amount of profit while the population increases. You can see the example, automobile industry. Earlier people were not using that much mobile. Now in it may be the rural area or the urban area, each and every person is having what, mobile phone. हर एक बंदा बंदी के पास क्या है, मोबाइल फ़ोन है. तो जैसे आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा. आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती कि खरीदने वाले लोग मार्केट में ज़्यादा है. तो यू इन्वेस्ट व्हाट, ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. Consumer preference. Industries providing goods and services which are in good demand.
will require the larger amount of fixed capital. आपको पता है कि कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है? Who are the consumer? We are the consumers. हम जो भी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, जो भी कमोडिटी यूज़ करते हैं, तो हम कौन बने? कंज्यूमर बने. The thing is that कि whenever consumer preference is there, अगर आपको लगता है कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस है ये सब कमोडिटी पे, तो यू इन्वेस्ट अ फिक्स कैपिटल. आप ज़्यादा फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट करते हो. क्यों? क्योंकि आपको उससे प्रॉफिट मिलता है. नेक्स्ट इज व्हाट? कॉम्पिटिटिव फैक्टर. दिस फैक्टर इज अ प्राइम एलिमेंट in the decision making regarding the fixed capital requirement. If one of the competitors shift to automation, the other companies in the same line of the activity will be compelled to follow that competitor. Whenever you go for any business, there is what? Competition. हर एक जगह पे you will face what? Competition. In each and everything competition is required. ठीक है, कंपटीशन आपको हर जगह रिक्वायर्ड होती है. तो अगर आपको लगता है कि मेरा कॉम्पिटिटर वो एक दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहा है, तो सारे लोग क्या हो जाते हैं? उस जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं. दैट इज़ नोन एज इन व्हाट? कॉम्पिटिटिव फैक्टर. थैंक यू सो मच.